सीटी एंड एमआरआई के प्रिंसिपल में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम समझेंगे कि सीटी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, ठीक है, स्टोन कैसा दिखता है सिटी में, एयर कैसे दिखती है सिटी में, ठीक है। और एमआरआई में सबसे इम्पोर्टेंट है, हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा T1 वेरिएबल इमेज है, कौन सा T2 वेरिएबल इमेज है। तो हम वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे कि हमें सीक्वेंस देख के हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कौन सा सीक्वेंस है। और हर सीक्वेंस की पता है आपको एमआरआई में कौन से सीक्वेंसेस होते हैं? बिल्कुल आइडिया नहीं है। किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। T1, T2 और फ्लेयर। और पहले हम एक्सरेज के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्सरेज तो देखे होंगे सर हॉस्पिटल में, चेस्ट एक्सरेज, एब्डोमिनल एक्सरेज, लेंस के एक्सरेज। So does anyone have any idea how are X-rays produced? So X-rays was discovered by Sir William Röntgen, right? So he discovered the X-rays on 8th November 1895. That is why 8th November is celebrated as the World Radiology Day, right? So let us discuss the properties of X-rays. Why are X-rays being used as a investigation, right? So these are electromagnetic radiation. So these are electromagnetic radiations of shorter wavelength, right? The most important thing is they penetrate through the object through which they pass, right? अगर हम light use करें X-ray as an investigation, so light is not able to cross the body, ठीक है? That is why we are using X-ray, because they are able to penetrate the body, right? So this is a very important property. Then another very important property is fluorescence in materials like calcium tungstate and iodide. So fluorescence means they will produce light whenever they will strike some substance. So that substance is calcium tungstate. ठीक है, जब ये calcium tungstate पर जाएंगी, they will produce fluorescence. So this property is used to produce an image. So this is another very important property. X-rays produce ionization and excitation in the substances through which they pass. So can anyone tell me what is the significance of this property? Ionization and excitation. When X-rays pass through a substance, they will produce ionization and excitation. क्या मतलब हुआ इसका? X-rays की property है ionization and excitation. हाँ, तो इसका कोई significance होगा? So it produces ions within the ball. So what happens? And it just emits speed because of electron and photons. Common sense use करनी है. अगर ionization और excitation produce करेंगे through the substances through which they pass, so what will be the problem? So it will emit the light, like radiation will follow through and become the speed of the Common sense और कोई common sense use करेगा? Anyone? Ionization हो जाएगी आपकी बॉडी में, तो फिर क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं? Ionization होगी बॉडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है? Anyone? बोलो। बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर आयनाइजेशन हो रही है बॉडी में तो एक्सरेज आर हार्मफुल, ठीक है ना? इसलिए हमको ये नहीं कहीं पर भी यूज कर लेंगे एक्सरेज को। किसी को आइडिया कैथ लैब क्या होती है? कैथ लैब में आइडिया जो कार्डियोलॉजिस्ट यूज करते हैं फॉर एंजियोप्लास्टी। सो कैथ लैब इज नथिंग, इट इज जस्ट एक्सरे, लाइव एक्सरे। कैथ लैब इज नथिंग बट जस्ट अ लाइव एक्सरे। जैसे हम फोन में एक फोटो ले लेते हैं, वो एक सिंपल एक इमेज होती है, बट अगर हम एक वीडियो लेंगे सो दैट विल बी अ कैथ लैब, राइट? दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरोस्कोपी, ठीक है? अब फ्लोरोस्कोपी रूम में आपने क्या देखा होगा? देखा है कभी फ्लोरोस्कोपी रूम में कैथ लैब या किसी ऑर्थोपेडिशियन को देखा? वो एक एप्रन पहनता है। कौन सा एप्रन होता है? कौन सा एप्रन होता है? देखा है कभी ऑर्थोपेडिशियन को? लेड एप्रन। क्यों पहनते हैं लेड एप्रन? Protect themselves from the X-rays, right? So this is a very important property that they will produce ionization. ठीक है, एक X-ray के exposure से कुछ नहीं होगा, but someone who is continuously exposed to the X-rays, right? उसको side effects मिलेंगे उसको, right? Clear है सबको ये point? They produce biological effects in the living organisms. They produce chemical changes in the substances through which they pass, right?
So this is the electromagnetic spectrum, and you can see where is the X-rays standing from 0.01 nanometer to the 10 nanometer. So are we clear with the properties of the X-rays? One important property is that they will penetrate the substances, right? They will produce ionization, they will produce fluorescence, they will produce biological effects. These are the two important properties. Now I will tell you how are X-rays produced. So what happens? We take a cathode and we take an anode. So fast moving electrode, cathode is negatively charged. So fast moving electrodes will move from cathode to the anode, right? So when these electrons will move from cathode to the anode, right? They will strike the anode and they will lose some of their kinetic energy. Okay? When they will lose some of their kinetic energy, that energy will be lost in the form of X-rays, right? Simple सा concept है. हमें एक X-ray ट्यूब लेनी है, उसमें हमें कैथोड रखना है, उसमें हमें एक एनोड रखना है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड करेंगे कैथोड से, ठीक है? And those electrons will strike anode, right? And when these electrons will strike anode, what will happen? They will lose some of their kinetic energy, right? And this lost kinetic energy will produce X-rays. This is the basic concept of the X-rays. So now we will study this concept a little bit detail. So X-rays are produced in a machine which is known as X-ray tube. So it is a glass enveloped vacuum tube. So what is this X-ray tube having? It is having a cathode at one end and an anode at other end, right? So what happens? So just read these lines very carefully. So when metal is heated, the atom absorbs thermal energy and some of the electrons in the metal acquire energy to allow them to move to the surface. So basically, when potential difference is applied to the cathode, what will happen? Electron will reach to the surface of the cathode, right? This is known as thermionic emission. And after that, what will happen? These electrons will start accelerating from cathode to the anode, right? And they will strike the target, which is the anode, and their interaction of the electrons with the target will produce. Is that clear? नहीं clear हुआ? क्या clear नहीं हुआ? पहले हमने एक कैथोड लिया, we take one anode, right? हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, तो कैथोड के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती है. सिंपल, ठीक है? क्लियर? नाउ आई विल टेल यू, जब ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे जाते, एनोड पे जाते हैं, व्हाट हैपेंस? What are the various possible things that can happen when these electrons are going to the anode? So they can remove an outer shell electron, which is known as ionization. ठीक है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे 11th-12th में, अगर हम बाहर के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, so that is known as ionization. So these electrons, fast moving electrons, either they can cause ionization of outer shell, or they can cause ionization of inner shell, or they can interact with the nuclear field. So these are the few possible ways with which electrons can interact with the anode, right, or the target. ठीक है, either they can produce ionization, or they can produce photoelectric effect, or they can interact with the nuclear field. ठीक है? So what happens? Now see this image very carefully. So we have a fast moving electron, right? Fast moving electron. So it comes near to the nuclear field, right? So when it will come to the nuclear field, because nucleus is positively charged, and when a negatively charged particle is coming near to the nuclear field, what will happen? It will change its path. It will get attracted and it will change its path. And it may lose some of its kinetic energy, right? So this electron, when it is moving towards the nuclear field,
it gets deviated from its path, right? So this is a deflected electron and it loses some of its kinetic energy. So we all know that energy can neither be lost or gained, right? So this lost kinetic energy, right? Listen to me very carefully. This lost kinetic energy, what happens? It is released in the form of, everyone, this lost kinetic energy is released in the form of photons. What is this photon? This is X-rays. समझ आया? So ये फोटोन ही एक्सरेज है. सबको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हो तो बताओ, फिर से रिपीट करेंगे. एक्सरेज बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें अच्छे से आएंगे. क्लियर? यस और नो? नहीं हुआ तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट करेंगे. जो हमारा कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल 100 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी है. इज इट क्लियर? ठीक है? वो एनोड पर आया, उसका पाथ चेंज हो गया, ठीक है? उस पर हमने ब्रेक्स लगाई, उसका पाथ चेंज हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई. फॉर एग्जांपल 50 जूल हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी, राइट? अब 50 जूल एनर्जी रहेगी ना हमारे पास, राइट? 50 जूल रहेगी, तो 50 जूल्स कहाँ जाएगी? It will be released in the form of X-rays, right? Is that clear? Simple. So this type of energy, right? It is also known as Bremsstrahlung radiation, right? Bremsstrahlung radiation. So this is another term which is used for X-rays. Bremsstrahlung is a German word which means breaking, right? So how are X-rays being produced? So we are applying brakes to the fast moving electrons, right? And when these fast moving electrons slow down, what happens? They release some of their kinetic energy in the form of, ठीक है? This photon is nothing but X-rays, right? So this radiation is known as, everyone बोलो, repeat करो मेरे साथ, this radiation is known as Bremsstrahlung radiation. What is this radiation known as? Bremsstrahlung radiation. आप लोग आगे रहो. एक पॉइंट और याद रखना है हमें. अब हर एक्सरेज की एनर्जी होती है, राइट? सो इसमें क्या होगा? ब्रह्मस्ट्रालंग रेडिएशन में हमारे पास सारे एनर्जी के फोटॉन्स हैं, राइट? फ्रॉम 0 to 100, राइट? 0 to 100 हमारे पास सारे एनर्जी के फोटॉन्स होंगे whenever X-rays will be produced. That is why it is also known as continuous spectrum. So it will have, if you look at this graph, right, and we draw a graph which is showing the energy of the X-rays and the number of photons which are produced. So on the x-axis we have the number of photons and on the y-axis we have the energy. So you will see that we have photons of all the energy in this Bremsstrahlung radiation, right? So that is why this is known as a continuous spectrum. I will tell you what is the significance of this continuous spectrum. ठीक है? Now the 70 to 80% of the X-rays, अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूँगा. 70 to 80% of the X-rays which are produced, right? वो क्या है? Bremsstrahlung radiation. But 20 to 30% of the X-rays, we have another type of X-ray. So we will see how these X-rays are produced. Does anyone have any idea about the photoelectric effect जो केमिस्ट्री में पढ़ते थे? नाम सुना सा लग रहा है, photoelectric effect नाम सुना हुआ है. तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं. अभी तक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, दे वर गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ. अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये के शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, इतना पॉइंट समझ आया? इलेक्ट्रॉन्स आए, उन्होंने के शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया. फिर जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, व्हाट हैपेंस? एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई इट्स स्पेस. एक कंसेप्ट और याद रखना हमें, जो भी के शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव अ लोअर एनर्जी, राइट, एज कंपेयर टू अ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इनकी जगह ले लेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, दैट एनर्जी इज, समझिए, एक इलेक्ट्रॉन आया, हमारा कैथोड से इलेक्ट्रॉन आया, वो एनोड के इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करा, उसने के शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया. ठीक है, के शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया. अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है. तो जब वो L से K में मूव करा, it will lose some of its energy. So that energy will be released in the form of
एक्सरेज, एंड इस एक्सरेज की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम. कैरेक्टरिस्टिक, इज दैट क्लियर? जोश से बोलो यार, बिल्कुल भी जोश नहीं है तुम्हें. So what is the significance of this K spectrum, K characteristic spectrum? Anyone has any idea what is the significance of this K characteristic spectrum? So this K characteristic radiation, right? This is used in the mammography. This is used in the mammography, right? So it will have a radiation of just one wavelength, whereas Graham-Strahlen radiation or continuous spectrum, it was having wavelengths of, it was having all the wavelengths. That is why it was known as continuous spectrum. ठीक है. So this table is showing us that X-ray spectrum, it can be continuous, it can be characteristic. So continuous spectrum will consist of X-rays photons of all energy up to the maximum, also called as white light radiation. Whereas characteristic spectrum consists of X-rays photons of only few discrete energies. Characteristic spectrum will have photons of few discrete energies. So this is just a repetition of what we have just read. So is everyone clear with the Graham-Strahlen radiation and K characteristic spectrum? So characteristic radiation, what happens? An electron interacts with a tightly bound orbital electron, ejects orbital electrons from the innermost shell, vacancy is created, and that vacancy is filled up by outer shell orbital electrons, and there is emission of X-ray, right? So what is the use of this characteristic spectrum? It is used in mammography. Very good. So in X-rays we have two parameters which we have to control, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है. वन इज किलो वोल्ट एंड द अदर इज मिली एम्पियर सेकेंड, राइट? सो वी शुड नो कि किलो वोल्ट को चेंज करने से क्या होता है और मिली एम्पियर सेकेंड को चेंज करने से क्या होता है. डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द किलो वोल्टेज, ओके, सो द कंट्रास्ट इज गोइंग टू डिक्रीज. सो किलो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंट्रास्ट ऑफ द एक्स-रेज. Now you will ask, sir, then why we are going to increase the kilo voltage, है ना? जब contrast ही कम हो रहा है तो हम कम किलो वोल्ट अप्लाई करें. So basically when we increase the kilo voltage, the penetration of the X-rays increases. So we have a fatty patient, ठीक है, उसमें हमें penetration ज़्यादा चाहिए, तो उसमें हम किलो वोल्टेज बढ़ाएंगे, right? So kilo voltage is inversely proportional to the contrast. Talking about milliampere second, another very important parameter. So when we increase the milliampere second, we are directly increasing the contrast, right? But हम ज़्यादा increase नहीं कर सकते. If we increase the milliampere second, what will happen? The radiation dose will also increase to the patient, right? So these are two important parameters. Kilo voltage is inversely proportional to the contrast. Milliampere second it is directly proportional to the contrast, right? Now, अभी तक हम पढ़ते थे interaction of electrons with the target, right? Interaction of electrons with the target. Now we will study interaction of electrons with the matter. Matter क्या है इधर? Matter क्या है? Human body, right? So what are the ways with which X-rays will interact with the body? So इसमें सबसे important effect है Compton effect, that we will study. Another very important effect is attenuation. Now what happens whenever X-rays, they are going to strike the body, right? So they are going to strike the bones, they are going to strike the lungs. So some of the X-rays, they will lose some of their energy. ठीक है. अब बोन्स पे एक्सरे स्ट्राइक कर रही है, उनका अलग इफेक्ट होगा. लंग्स पे एक्सरे स्ट्राइक कर रही है, उनका अलग इफेक्ट होगा. इसमें जब हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं, उसमें बोन्स कैसे दिखती हैं? वाइट. लंग्स कैसे दिखती हैं? ब्लैक. ठीक है, क्योंकि एक्सरेज लंग्स को ज़्यादा आसानी से पास कर रही हैं. बोन्स क्या कर रही हैं? बोन्स आर अटेनुएटिंग द एक्सरेज more than the lungs. That is why they are appearing white. So this is one very important property. The amount of energy that is getting reduced by a particular substance, that is known as linear attenuation
coefficient, linear attenuation coefficient, defined as reduction in the intensity per unit path length. ठीक है, so this is one way, right? Now let us look at the other effects. So उसमें हम सबसे important effect discuss करते हैं, that is the Compton effect. What is this Compton effect? सुना है किसी ने Compton effect? So whenever these X-rays, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अब हम फिर से कैथ लैब में चले जाते हैं. जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन द कैथ लैब. ठीक है, एक पेशेंट यहाँ पर लेटा हुआ, उसकी एंजियोग्राफी चल रही है. ठीक है, एक्सरे ट्यूब नीचे पड़ी हुई है, नीचे से एक्सरेज आ रही है, ऊपर डिटेक्टर है. सुन रहे हो सारे लोग, सुन रहे हो? कैन एवरीवन इमेजिन? ठीक है, यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, एक्सरे ट्यूब नीचे है, इधर डिटेक्टर है, एक्सरेज यहाँ से नीचे से ऊपर आ रही है. ठीक है, नीचे से ऊपर आ रही है, तो फिर हमें लेड हेपरिन क्यों डालना है? किसी ने सोचा अगर एक्सरेज नीचे से ऊपर आ रही है उसको हम डायरेक्ट करने की जगह पे, तो फिर हम लेड हेपरिन क्यों डाल रहे हैं? डेबिट क्यों होती है? हाँ, किससे टकरा रही है? हाँ, सोचा क्यों? सिर्फ कौन सी टकरा रही है एक्सरेज? नहीं, पूरी बॉडी से टकरा रही है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, जब भी एक्सरेज नीचे से आ रही है, ठीक है, तो वो जो बॉडी के साथ टकराती हैं, दे विल गेट डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ. सारी एक्सरेज नीचे से आए या ऊपर से आए, ठीक है, डेविएशन होगा एक्सरेज का. ठीक है, कुछ एक्सरेज पहुंच जाएंगे डिटेक्टर के ऊपर, बट कुछ एक्सरेज डेविएट होंगे. ठीक है, दिस इज नोन एज सारे कॉम्पटन इफेक्ट. ठीक है, एक्सरेज दो तरह की होती है, जो फ्लोरोस्कोपी होती है ना, उसमें अंडर दी काउच भी होता है, ओवर दी काउच भी होता है. तो जो फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है ज्यादातर उसमें एक्सरेज नीचे से आती है. ठीक है, ऊपर से भी एक्सरेज आती है. सो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोई भी अगर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट एक्सरे रूम में अगर काम कर रहा है, उसको प्रॉब्लम किससे है? स्कैटर रेडिएशन से. कॉम्पटन इफेक्ट, राइट? So the photon interacts with atomic electron as though it were a free electron. जो free electron है, it will be emitted at an angle theta. Now this free electron is present within the body. ठीक है? So the reduced energy photon is scattered at an angle. Is scattered at an angle, and this is known as scattered radiation. Very important effect. अब सबको समझ आ गया कि why we are wearing lead aprons when we are working in the X-ray room और fluoroscopy room और cath lab. ये सबको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, almost all scatter radiation that we encounter in diagnostic radiology comes from Compton scattering. Scatter radiation from Compton reaction is also a major safety hazard during fluoroscopic examination. Is it clear? नहीं clear हो तो बताओ, right? And this can also be used for therapeutic purposes in radiotherapy. ठीक है, this is another use of Compton radiation. Now let us discuss few other effects on the body. So other effects include coherent scattering, right? So coherent scattering is when X-rays, these are absorbed by the body, right? And same energy X-rays are produced. Same energy is released from the body. This is known as coherent scattering. So basically X-rays, they are going to strike the body and they will get deviated from their path, but they will be of the same energy, but इसकी quantity बहुत कम होती है, very less, right? This is known as coherent scattering. Due to interaction with the nuclear field, है ना? देखो इसमें दो तरह की radiations होती हैं. There are two types of scattering: Thomson scattering and Rayleigh scattering. So Thomson scattering, a single electron is involved. So what happens? There is absorption of the radiation, there is vibration of the atom, right? And emission of radiation from the atom, right? Produce a photon. But इसकी quantity बहुत कम होती है. So this can be of two types: Thomson scattering as well as Rayleigh scattering. Results from a cooperative interaction with all the interactions of an atom. Visibility के लिए नहीं करते हैं ये सब डिस्कस.
ओरेंट स्कैटरिंग हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट हो गया, ये साइड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं एक्सरे से, ठीक है ना, कि अगर वो बॉडी पे आएंगे उनके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज अटेन्युएशन, बिकॉज एक्सरेज आर गेटिंग अटेन्युएटेड, though they are freely passing through the body but they are getting attenuated, that is why how images are produced, ठीक है। The amount of the energy that is getting reduced, that is measured in the form of linear attenuation coefficient, ठीक है। कितना एक्सरेज रिड्यूस हो रही है जब वो किसी बॉडी में से पास कर रही है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कॉम्प्लेक्स इफेक्ट, दे विल गेट स्कैटर्ड एट अ लोअर एनर्जी, ठीक है, टू अ डिफरेंट एंगल, दैट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट और स्कैटर रेडिएशन। सो अनदर वे अ फोटोन कैन इंटरैक्ट विद द बॉडी, दिस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। सो व्हाट हैपन्स, a high energy photon, it interacts with the nuclear field. So when this photon interacts with the nuclear field, what happens, and electron and positron is produced. An electron and a positron is produced in pair production. Now positron loses its energy, it combines with the free electron and produces two photons. So basically one photon, it is striking the body, it produces one positron and electron, right? Then this positron and electron, they again combine with each other and they produces two photons, right? This is known as pair production, right? This concept is used in nuclear medicine, right? Just इतना याद रखना कि pair production concept is used in nuclear medicine, right? So this was about the basics of the exercise. Break चाहिए किसी को? ज़्यादा बोरिंग हो गया? मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, अभी बेसिक्स कवर करते हैं पूरे। Now let us summarize what we have studied till now. One is how are X-rays produced, right? X-rays are produced when fast moving electrons they strike a node, and this some of the kinetic energy is lost in the form of Brahms-Strahlen radiation. So Brahms-Strahlen radiation is a MCQ. ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती है? एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम is an MCQ. All the properties of the X-rays that we have studied, it is an MCQ. ठीक है, it is an electromagnetic radiation. What is the wavelength of the X-rays? They will produce biological effects. They are going to produce ionization through the substances through which they are going to pass. Then Compton effect, very important. Scatter radiation. Scatter radiation का side effects क्या है, right? All the scatter radiation that we are getting is through the Compton effect. ठीक है? Then pair production, it is used in PET scan. This principle is used in PET scan. ये सारे important questions हैं X-rays. जब भी हम X-rays produce करते हैं, we select the kilovolt, we select the milliampere second. उससे एक पर्टिकुलर एनर्जी की एक्सरेज आती है जो हमने ऑलरेडी डिसाइड करा होता है, जो आराम से बॉडी को पेनिट्रेट कर देंगे। हाँ, किलो वोल्टेज और मिली एम्पीयर सेकंड ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ठीक है। क्लियर एक्सरेज इंपॉर्टेंट है, बोरिंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं सिटी में। तो डज एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट सिटी? व्हाट टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड इन सिटी स्कैन? एब्डोमिनल क्या इंडिकेशन कैसे करवाया? ये सुना भी नहीं किसी का हुआ है? चलो सारे मेरे को एक एक इंडिकेशन बताओ, सारे एक एक इंडिकेशन बताओ जिसने भी सुना है कहीं का भी सिटी स्कैन किसी भी पार्ट में। इंडिकेशन यही रेडियोलॉजी जो ये सारे बोल रहे हैं ना, ये सारा पढ़ना है हमें। लंग्स में ब्रोंकियोप्लेसिस, वेरी गुड। लंग्स में फ्लूइड, वेरी गुड। बोन्स के लिए इंटरनल ब्लीडिंग, वेरी गुड। कोई ना गूगल भी चल रहा एवरेजेस, वेरी गुड। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस है हमारी सिटी स्कैन की, ठीक है।
सो इफ वी टॉक अबाउट ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में अगर हम नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी ऑफ द हेड करवाते हैं, ठीक है, उसमें हम करवाते हैं स्ट्रोक्स के लिए, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए. इफ़ वी आर गेटिंग अ सिटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, एज ए डॉक्टर भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना. आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, उसको फीवर है, ब्रेथलेसनेस है, ठीक है, यू आर थिंकिंग ऑफ निमोनिया, सो व्हाट यू विल गेट इट, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल गेट इट डन, HRCT चेस्ट, ठीक है ना. किसी को भी ब्रेथलेसनेस हो रही है, कोई भी आपका रिलेटिव आपसे पूछता है क्या करना है, HRCT चेस्ट कराओ, उसके बाद देखेंगे. और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी रहती है एक्सरेज. बट प्रॉब्लम क्या है एक्सरेज की, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द एक्सरेज? जोर से बोलो. रेडिएशन कम होती है एक्सरेज में, इसलिए वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है. प्रॉब्लम क्या है? अब एक्सरे एब्डोमेन होता है, ठीक है, उसमें हमें कुछ भी नहीं दिखता, उसमें हमें सिर्फ बबल गैसेस दिखती हैं, ठीक है, बबल गैसेस ही दिखती हैं बस. तो बबल गैसेस में हम कुछ मेकआउट नहीं कर पाते. अगर हम CT ऑफ द एब्डोमेन की बात करें तो उसमें हमें लिवर अलग से दिखता है, किडनी अलग से दिखता है, स्प्लीन अलग से दिखता है, पैंक्रियाज अलग से दिखता है, ठीक है. अगर हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, निमोनिया हमें दिख जाएगा एक्सरे के ऊपर, ठीक है, बट वो कौन से लोग को इन्वॉल्व कर रहा है, कितना इन्वॉल्व कर रहा है, हमें अच्छे से. लिम्फ नोड्स, मीडिया चैनल लिम्फेडिनोपैथी पता है ना, टीबी में जो मिलती हैं, वो हमें एक्सरे पे शायद क्लियरली ना दिखे, तो हम आगे और इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं पेशेंट को, इसलिए हम CT चेस्ट करवाएंगे इसका. तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये CT चेस्ट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था. अब आजकल तो जगह जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर है, ठीक है, यू कैन इजीली गेट अ CT स्कैन डन इन दी फर्स्ट प्लेस. बट इनिशियली एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन ऑन दी एक्सरेज ओनली. एडवोकेट क्या पहले एक्सरेज के बेसिस पे करते थे जितना होता था, ठीक है ना, सब कुछ डायग्नोस नहीं हो पाता था. तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी CT. नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड CT. प्रिंसिपल क्या है CT स्कैन का, एनी आइडिया? जैसे एक्सरेज में तो हमने बता दिया एक्सरेज यूज करेंगे, CT स्कैन में कोई रेडिएशन है, कौन सी रेडिएशन है उसको चाहे वह भी नाम मुझे बताएगा. CT स्कैन में रेडिएशन CT स्कैन, CT में रेडिएशन ही है. अभी किसी डॉक्टर का रजिस्टर ने शायद कुछ कमेंट भी करा था ना कि हर किसी को CT कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना चाहिए, तो उस पर बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट ने ऑब्जेक्ट करा था. कौन सा रेडिएशन, वाई में कैसे, हाँ CT स्कैन में भी एक्सरे यूज करते हैं, CT स्कैन में भी क्या यूज कर रहे हैं, सारे बोलो. वेरी गुड. CT स्कैन में we are using X-rays. So now we will see how this X-rays. So now I will tell you how these X-rays are producing an image. डिटेल प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम किसी भी इमेजिंग मोडालिटी को स्टडी कर रहे हैं, राइट, हम 2 दिन CT ही डिस्कस करेंगे, नॉन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, CT ऑफ द हेड, बट थोड़ा सा प्रिंसिपल पता होना चाहिए प्रोड्यूस कैसे हो रही है. जैसे अभी तक हमें पता ही नहीं था कि CT स्कैन में जो रेडिएशन यूज होती है वो कौन सी है, एक्सरेज. लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट याद है सबको? नहीं याद तो बताओ. कोई भी सब्सटेंस बॉडी में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए पूछ रहा हूँ. तो CT स्कैन की देखा किसी ने? CT स्कैन देखा होगा सबने देखा है, नहीं देखा? नहीं देखा तो गूगल करके देख लो अभी, ठीक है. उसमें एक गैंट्री होती है, एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बीच में, ठीक है, पेशेंट इज गोइंग इनसाइड दिस गैंट्री, राइट. हाँ, MRI भी ऐसा सही होता है. क्या कह रहे हो? समझ में आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, वही करना है. अब CT स्कैन में क्या है, ये है एक्सरे ट्यूब,
ठीक है, ये एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पर पेशेंट लेटा हुआ है और ये हमारा डिटेक्टर है. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस एक्सरे स्टार्ट्स फ्रॉम द पेशेंट, फॉल्स ऑन दिस डिटेक्टर प्लेट. नाउ दिस इन अ CT scan what happens, this X-ray tube is rotating, this X-ray tube is rotating, ठीक है, and detector plate is also rotating. Now what happens, multiple X-rays are taken through the patient, ठीक है, multiple X-rays are taken through the patient in all directions. For example, this is the cross section of the patient. Now we have taken multiple X-rays through the patient, right? अब what will the computer do? Computed tomography, ठीक है. So a computer will have a record of all the X-rays which are passing through the patient and how much attenuation is brought by each radiation in a particular direction. तो कंप्यूटर क्या करता है, हर पॉइंट पे एक लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेता है थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है. CT स्कैन है तो एक्सरेज ही, ठीक है, बट CT स्कैन में इतनी अच्छी इमेज कैसे आती है, मल्टीपल प्रोजेक्शन आर टेकन. सो इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, वन CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, राइट, इट इज इक्विवेलेंट टू 400 एक्सरेज, ठीक है. सो कंप्यूटर क्या करेगा, हर पॉइंट का एक लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, कि हर पॉइंट पे कितना एनर्जी यूज हुआ, उस चीज को वो एक कलर में रिप्रेजेंट कर देगा, राइट, एंड दैट विल फॉर्म एन इमेज. इतना सिंपल है. जस्ट ओपन एक्सरे एब्डोमेन इन योर फोन. जिसने नहीं देखा हुआ एक्सरे एब्डोमेन, एक बार ही फोन में खोलो एक्सरे एब्डोमेन, राइट, ठीक है. अभी आपने एक्सरे एब्डोमेन खोल लिया सबने फोन में, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, गैसेस दिखाई दे रही है और क्या दिखाई दे रहा है, बोन्स दिखाई दे रही है, ठीक है. अब CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन की फोटो है इसमें, हाँ? ये रहा CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है. अब इस CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन में क्या दिख रहा है, एक्सरेज में क्या हुआ, एक्सरे में हमने एक सिंगल प्रोजेक्शन लिया, ठीक है, और वो आपके पास एक्सरे इमेज बन गई. वो एक्सरे इमेज भी क्या बन रही है, उसने 2 डायमेंशंस के ऊपर लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करा, ठीक है. अब मैं वही बता रहा हूँ, एक्सरेज में भी क्या हो रहा है, हमें थिकनेस का लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट पता चल रहा है, कितनी मोटी थिकनेस का, ठीक है ना. यहाँ पे जो भी थिकनेस आई ना, पूरी एक थिकनेस का LSC बता रहा है. CT स्कैन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक एक पॉइंट का लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट आ गया, इसको हम पिक्सल बोलते हैं. समझ गया मैं आपका पॉइंट. लीवर दिखाई दे रहा है हमें एक्सरे पर, लीवर दिखाई दे रहा है, बट डिफरेंस समझो ना कि एक्सरे में हमने सिंगल एक प्रोजेक्शन लिया, एक पूरी थिकनेस का लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है. इसमें क्या है, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्शंस लिए हमने, तो उससे हमें सिंगल पॉइंट का लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट पता चलेगा, ठीक है. जो आप कह रहे हो कि अगर हम वही LSC LSC थोड़ी ना ले सकते हैं, LSC तो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, उससे LSC तो बाद में कैलकुलेट हो रहा है ना, एक्सरे से कैलकुलेट हो रहा है. LSC से एक्सरे थोड़ी ना बनाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात. LSC तो बाद में कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास LSC आया तभी हम उसको कलर दे पा रहे हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टेस्ट किया, ठीक है, तो अगर एक ही बच्चे ने टेस्ट दिया, उसको एक कलर दे दिया, ठीक है. अब हमने 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, ठीक है, हर बच्चे को एक हमने अलग अलग कलर दे दिया, राइट. सो बिकॉज एवरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर, सो दैट इज व्हाट फॉर्म्स द इमेज. नहीं पता, एक एक्सरे से हमारे पास इतने सारे लीनियर अटेन्यूएशन हर पॉइंट का LSC नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें हमने हर एंगल पे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट एक आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है. क्या कह रहे हो, उतना डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है ना, कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है. उतना डेप्थ तो मेरे को भी नहीं पता होगी, ठीक है. तो मेरा मेन एम ये है कि आपको बेसिक कंसेप्ट बताना.
सिटी एक्चुअल में इमेज कैसे बन रही है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है। हमें सिटी फिजिक्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मेरे को भी बेसिक्स पता है, ठीक है ना, वो तो फिजिक्स वाले बंदे का काम है ना, ठीक है। आपका पॉइंट भी मैं समझ गया, बट आप थोड़ा सा इस चीज को समझने की, खुद समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब क्या है कि हर बॉक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, LAC से रिप्रेजेंट करा है, और उसको हमने कलर दे दिया। अब उसके बाद छोटे छोटे इतने कलर्स आ गए, तो उससे क्या हुआ, हमारी इमेज बन गई। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सिटी चेस्ट? सिटी चेस्ट देखा? सो उससे पहले वी विल डिस्कस वन मोर कंसेप्ट, दैट इज सिटी नंबर। व्हाट इज सिटी नंबर? सिटी नंबर बेसिकली एक सिटी नंबर के बेसिस पे हम कलर देते हैं, ठीक है। तो सिटी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ टिश्यू माइनस लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ वाटर अपॉन LAC ऑफ वाटर, ठीक है। ये सिटी नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर है। Does anyone have any idea सिटी किसने आइडेंटिफाई करा था? Who discovered city? किसी को आइडिया नहीं? सर हाउसफील्ड डिस्कवर्ड दी सिटी, ठीक है, राइट। कैलकुलेट करो, देखते हैं किसकी मैथमेटिक्स सबसे अच्छी है। तुम कैलकुलेट करो, प्लस माइनस में नहीं आता क्या? LAC ऑफ सिटी नंबर ऑफ वाटर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सबका आ गया, कैलकुलेट आ गया, ठीक है। सिटी नंबर ऑफ वाटर इज 0. So this is also known as Hounsfield units, right? So अभी हमें आगे जाके पता होना चाहिए कि एयर का हाउसफील्ड यूनिट्स कितना होता है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। मेरे नोट से चीटिंग कर रहे हो गूगल से, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि सिटी नंबर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक पिक्सल को क्या देते हैं, कलर देते हैं, ठीक है ना। तो जिसका सिटी नंबर ज्यादा होगा उसका कलर क्या होगा, ज्यादा होगा, वेरी गुड। जिसका सिटी नंबर बहुत कम होगा उसका कलर क्या होगा, कम। कम क्या होगा, कलर कैसा होगा, कम ज्यादा होगा, कलर ब्लैक होगा, ठीक है। जिसका सिटी नंबर बहुत ज्यादा उसका वाइट होगा, ठीक है। तो बोन्स अगर आप देखोगे सिटी पे, दे आर ऑलवेज वाइट, एयर इज ऑलवेज मोस्टली ब्लैक, मोस्टली नहीं, ऑलवेज ब्लैक, ठीक है। नाउ सिटी नंबर ऑफ फैट, सिटी नंबर ऑफ फैट इज -100। मोटा मोटा ये याद रखना चाहिए, सिटी नंबर ऑफ बोन्स इज अप्रोक्सीमेटली +600 700,000, ठीक है। बोन्स का बहुत ज्यादा होता है, बोन्स ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे ना, ठीक है, एक्सरेज है ना। सिटी नंबर क्या है, सिटी नंबर लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट की रिप्रेजेंटेशन है। फॉर्मूले में तो लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है ना, बस वाटर से कंपेयर कर दिया। तो किसी का सिटी नंबर ज्यादा तो मतलब ज्यादा वाइट दिखेगी, ज्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब करेगी। एयर सिटी नंबर इज माइनस, लंग्स का सिटी नंबर माइनस में, बिकॉज लंग्स आर गोइंग टू एब्जॉर्ब लेस एक्सरेज, ठीक है। इसलिए उसका सिटी नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो लंग्स कैसे दिखते हैं सिटी में, देखो कैसे दिखती है, ये सबसे ऊपर वाली, समझ आ गया लंग्स ब्लैक क्यों दिखती है। अब थोड़ी चीजें कोरिलेट हो रही है, नहीं हो रही, अब समझ आया। पहले तो हमें पता था कि लंग्स ब्लैक दिखती है, बोन्स वाइट दिखती है, अब थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा समझ आया सिटी नंबर का, उतना ही समझ लें, ठीक है। So because city was discovered by Hounsfield, that is why this very important city number is known as Hounsfield units, right? अब प्रॉब्लम क्या है कि सिटी में सारे कलर्स ऑफ ग्रे हैं, ठीक है, ब्लैक वाइट ग्रे, ग्रे के अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। जैसे अगर
हम ये इमेज देखें सीटी चेस्ट की, तो कोई स्ट्रक्चर ज़्यादा ग्रे है, कोई स्ट्रक्चर कम ग्रे है। एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, फैट का सीटी नंबर, फैट का सीटी नंबर इज -50, राइट। इट इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। दो स्ट्रक्चर्स का वाटर से सीटी नंबर कम है। कौन से दो स्ट्रक्चर हैं? दो स्ट्रक्चर्स का सीटी नंबर वाटर से, सीटी नंबर समझ आ गया, ठीक है। दो स्ट्रक्चर्स का सीटी नंबर वाटर से कम है। कौन से दो स्ट्रक्चर है? एयर और फैट, ठीक है। एयर का -700 -1000 के अराउंड है, फैट का कितना है? -50। इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा मेरे को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग कि एयर एंड फैट का सीटी नंबर इससे कम है, वाटर से कम है? क्या मतलब? ठीक है। So there are two structures which appear dark on the CT. One is air and the other is fat. तो अगर हमें सीटी में कुछ भी काला दिखेगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हवा या फैट। समझ गए? 0 to -20, ठीक है, माइनस है इसका, ठीक है। 0 to -20 बोन की प्लस कितना दिया? 800 to 1000, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मल हमारे सॉफ्ट टिश्यूज है ना, दैट इज फ्रॉम 0 to 50। अभी उस पे आ रहे हैं, ठीक है। सेम वही वाला क्वेश्चन है आपका, सेम कंसेप्ट है, बट ये है कि एक्सरे में हमारे पास इतने सारे सीटी नंबर नहीं है। एक्सरे में हमारे पास इतने ज़्यादा सीटी नंबर नहीं है कि हम उसको इतने सारे कलर्स दे रखे हैं, इसलिए उसमें हमें सारी चीज़ें क्लैरिटी नहीं होती। बट सीटी स्कैन में हमारे पास बहुत सारे रेंज ऑफ नंबर्स हैं, बहुत सारे रेंज ऑफ कलर्स हैं। एक्सरे में कितने कलर्स हैं? 2 3 4 5 कलर हैं, बट सीटी में हमारे पास कलर ज़्यादा है, वही दिक्कत आ रहा है। इंट्रोडक्शन खत्म कर लेते। किसी ने चाय पीनी है वो क्लास में पी सकता है, कोई वो तो क्लास में नहीं दे सकता। एक बार सीटी का इंट्रोडक्शन खत्म कर देते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा, जो लोग भागने के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा 2 दिन के लेक्चर पे कैसे यूटिलाइज करना है उसको मैं थोड़ा बताऊंगा, ठीक है ना। सीटी से हट जाते हैं, अभी थोड़ा ज्ञान बांटते हैं, ठीक है, मोटिवेशन। तो देखो 2 दिन लगातार बैठना, एक टीचर को सुनना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। मैंने भी 2018 में APT क्लियर करा था, मैं भी कुछ ज़्यादा तुझसे बड़ा नहीं, ठीक है। तो 2 दिन लेक्चर लगाना और उस सब्जेक्ट के बारे में सुनना जो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं, डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट हमें अपने आप को अंदर से ही मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई तुम्हें बाहर से आके नहीं कहेगा कि बैठ जाओ क्लास में, ठीक है ना। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कहेंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स नहीं कहेंगे तुम क्लास में बैठ के सुनो, ठीक है। बट अब अभी हम 2 घंटे बैठे, ठीक है, हमें सीटी नंबर पूरा नहीं समझ आया। किसी को डाउट आ रहा है कि भाई सीटी नंबर से एक्सरे क्यों नहीं प्रोड्यूस हो पाती है ना। सीटी और एक्सरे में अभी हम कंफ्यूज हैं, बट अभी हम 2 घंटे बैठे तो हमें एटलीस्ट ये तो पता चला कि सीटी में एक्सरेज होती हैं। किसी को उस चीज़ में तो डाउट नहीं है, सबको क्लैरिटी हुई कि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। हमने रेडियोलॉजी पहले पढ़ी भी नहीं, बट हमें फिर भी पता चल गया ना एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। तो आपने 2 घंटे पेशेंस रखी तभी आपको समझ आया। तो इसलिए यही सेम पेशेंस अगर हम 2 दिन रखेंगे तो रेडियोलॉजी की ऐसी बहुत सारी इमेजेस होंगी जो हमें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सारा 100% समझ नहीं आएगा,
बट 40-50% हम रिटेन करके जाएंगे, ठीक है। चाहे हमें नींद भी आ रही है, चाहे हमारा मन भी नहीं कर रहा, ठीक है, बट हमें रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि हमें इमेजेस समझनी है। इमेजेस समझ के क्या होगा? क्वेश्चंस आंसर होंगे, क्वेश्चंस आंसर होंगे, फिर क्या होगा? डॉक्टर लगेंगे, ठीक है। हाँ? पहले 2-3 घंटे सबसे बोरिंग पार्ट है रेडियोलॉजी, ठीक है ना। तो बट ये शुरू करना जरूरी है, नहीं तो फिर लोग कहते हैं कि यार हमने सीधा ही इमेजेस करवा दिए, हमें बेसिक्स हमें समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए पहले 2 घंटे को आप भूल जाना क्या हुआ आपके साथ, ठीक है। सो एयर का इज अप्रोक्सीमेटली -800, फैट का अप्रोक्सीमेटली -20 to -50, 50. हाँ 50-50। सॉफ्ट टिश्यूज का 0 to 40, राइट। हैमरेज का पता होना चाहिए हमें, हैमरेज का 60 to 80 अप्रोक्सीमेट होते हैं, ठीक है। वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। अगर किसी का नंबर किसी से ज्यादा है तो वो स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली कैसा दिखेगा, ठीक है। बोन्स 1000, बोन्स तो हमेशा ही ब्राइट दिखेंगी, लंग्स हमेशा ही ब्लैक दिखेंगी। क्या बोन्स का मेंशन करा हुआ? हाँ सही, प्लस में 800 to 1000 बोन्स का पॉजिटिव। 2 स्ट्रक्चर्स का काम है बॉडी से, वन इज एयर एंड द अदर इज फैट, ठीक है। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगा। सिटी नंबर क्लियर है सबको? इज एवरीवन क्लियर? कोई है जिसको सिटी नंबर नहीं समझ आया? कोई है जिसको समझ नहीं आया सिटी नंबर? ठीक है। अब हमारी एक और प्रॉब्लम है सिटी के साथ। अब हमारे पास नंबर्स हैं -1000 से लेके +1000 तक। अब मैंने आपको बोला कि हर नंबर को हमें कलर देना है, ठीक है। बट इतने सारे हमारे पास कलर्स ऑफ ग्रे है ही नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, इतने सारे ग्रे के कलर्स कहाँ से लेके आएंगे? हर नंबर को नहीं दे सकते ना, इसलिए हम कुछ ही नंबर्स को कलर ऑफ ग्रे देते हैं। ब्लैक टू व्हाइट हम एक सेट ऑफ नंबर चूज कर देते हैं। कौन मुझे बताएगा कि हमारे मैक्सिमम, अगर हम सिटी स्कैन ले रहे हैं बॉडी का, ठीक है, तो ज्यादातर हमारे सिटी नंबर्स कहाँ पे होंगे? मैक्सिमम सिटी नंबर्स एक रेंज बताओ जहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया है बॉडी का, यानी चलो अगर आप एब्डोमेन का कर रहे हैं तो मैक्सिमम सिटी नंबर्स कहाँ पे होंगे? रेंज बतानी, नंबर बताना है। तो अगर हम एब्डोमेन का सिटी करेंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिटी नंबर हमारे किस रेंज में होंगे? कितना? वेरी गुड, समझ आया। अगर हम सिटी एब्डोमेन करेंगे तो मैक्सिमम सिटी नंबर हमारे पास किस रेंज में होंगे? 0 to 40, ठीक है। तो अगर हमें एब्डोमेन ही देखना है, ठीक है, तो हम कंप्यूटर को बोल देंगे तू 0 to 100 कलर से, ठीक है। जो 100 है उसको व्हाइट कर दियो, जो 0 है उसको ब्लैक कर दियो, बाकी बीच में कलर्स ऑफ ग्रे दे दिए, ठीक है। तो हम कंप्यूटर को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, कलर्स ऑफ ग्रे दे देते हैं। हमारे पास -1000 to +1 अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने कंप्यूटर को बोल दिया कि तू 0 to 100 ले, ठीक है। तो इससे क्या होता है? ये वाली इमेज खोलो, लंग्स वाली। सो ये 2 इमेजेस एक ही पेशेंट की, राइट? 2 इमेजेस आर ऑफ द सेम पेशेंट, सेम पेशेंट की इमेजेस हैं, बट इसमें कौन बताएगा क्या डिफरेंस है? हाँ?
कुछ दिख रहा है यहाँ? इसको छोड़ के कुछ दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है ना, इसमें कुछ दिख रहा है? वेस्टर्न मार्किंग नहीं दिख रही, ज्यादा दिख रहा है ना दूसरी इमेज में, लंग्स ज्यादा दिख रही है ना, वो लंग विंडो है। जो पहली वाली इमेज है इसमें आपको सॉफ्ट टिश्यू दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, इसमें दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि जो दूसरी इमेज है दैट इज अ लंग विंडो, राइट, दैट इज अ लंग विंडो, और जो पहली इमेज है दैट इज अ मीडिया चैनल विंडो, राइट। समझ आया? ये पहली ये मीडिया चैनल विंडो होगी, ये होगी लंग विंडो, राइट। इसमें लंग्स में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, एकदम ब्लैक, ठीक है। इसमें लंग्स में हमें छोटी छोटी मार्किंग्स दिख रही हैं, राइट, बिकॉज दिस इज अ लंग विंडो। अभी हमने सेलेक्ट कैसे करें? तो इसमें मैंने कंप्यूटर को बोला फर्स्ट इमेज में कि यू टेक दी नंबर्स फ्रॉम 0 to 300, राइट, 0 to 300, टेक 150 एज द सेंटर। ये मैं थोड़ी वैल्यू सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना, मीडिया चैनल विंडो के लिए। सो एनीथिंग दैट इज 0 लेस देन 0 टेक दैट एज ब्लैक, ठीक है। एनीथिंग दैट इज मोर देन 300 टेक दैट एज वाइट, ठीक है। अब जीरोस, अब मेरे को कौन बताएगा कि इसमें दो स्ट्रक्चर्स कौन से ब्लैक दिख रहे हैं? रिब्स ब्लैक दिख रही, कौन किसने? और कौन सा स्ट्रक्चर ब्लैक दिख रहा है? फैट का इसमें, हाँ, दिखाओ कहाँ पे फैट कहाँ पे? कौन सा फैट है? सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। तो अब समझ आ गई सबक्यूटेनियस फैट ब्लैक क्यों दिख रहा है, राइट। अब क्या हुआ, दूसरी इमेज में मैंने क्या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, मैंने इसको बोला कि मेरे को लंग्स अच्छे से देखनी है, ठीक है। मैंने उससे बोला लंग्स अच्छे से देखनी है, तू मेरे को -1000 to -500 के बीच के नंबर दे दे, ठीक है, उसको कलर से रिप्रेजेंट कर दे। मैंने उसको ये बोल दिया, सेंटर तो ले लिए -750, ठीक है, सेंटर ले ले -750। तो उस केस में क्या करा, -500 से जिसका भी ऊपर है सिटी नंबर, ठीक है, तो वो क्या है, ब्राइट है, ठीक है। अभी क्या था, इस इमेज में फैट कैसा था, काला, ठीक है। अब मैंने कंप्यूटर को बोला कि तू -1000 to -500 ले। अब फैट का कितना होता है सिटी नंबर? -50, ठीक है। वाटर का कितना होता है? 0, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज का 40, बोन्स का 1000, तो सारा कुछ ही वाइट हो गया, ठीक है, सारा कुछ ही वाइट है। इसलिए सॉफ्ट टिश्यू पता नहीं चल रहा, हमें मतलब ही नहीं है सॉफ्ट टिश्यू से, बट लंग्स हमें अच्छे से दिख रहे हैं क्योंकि हमें इसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स देखने हैं, राइट। तो जो ये रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, ओके, रेंज ऑफ वैल्यूज, दिस इज विंडो विड्थ, वो भी बताऊंगा। अभी मैंने अभी इतना कंफ्यूज नहीं करा मैं, अभी नॉन कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्टिटी अलग से डिस्कस करेंगे। ये मैं सिंपल बता रहा हूँ कि एक मूवी है, एक ब्लैक एंड व्हाइट भी है, कलर भी है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। कोई आपको सिटी टेस्ट दिखाता है, ठीक है, आप सब लोग डॉक्टर्स हो, ठीक है, तो सिटी टेस्ट में आप देखोगे एक में लंग्स दिख रहा है अच्छे से, एक में मिडल चैनल दिख रहा है, तो उसका मतलब पता होना चाहिए। सो लंग्स इज फॉर सीइंग द लंग्स, ठीक है ना।